Hello students, Council has released its specimen papers for the board examination 2024. Today we will solve specimen paper for mathematics and will discuss important points and tricks regarding your examination. In next video we will discuss about marks distribution chapter wise and topic wise according to the new pattern and will discuss about time management. In the paper of mathematics बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि 2.5 आवर में हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप एक कंफर्टेबल जोन में अपने क्वेश्चन पेपर को 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर पाएँ, इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपको किस सेक्शन को, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेक्शन बी में से आपको क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करना है, इन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। रिगार्डिंग 2024 पेपर पैटर्न इज सेम एज इट वाज इन 2023 बट दिस ईयर सिलेबस इज वाइड। यू हैव टू कवर होल सिलेबस। कुछ टॉपिक्स थे जो लास्ट 2 और 3 ईयर्स से रिलेटेड थे। इस साल काउंसिल ने पूरे सिलेबस को अपने एग्जाम में कवर किया है। साथ ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड से डिफर है। इस साल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और ये काउंसिल ने हिंट भी दिया था। योर रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड विल बी 2.5 आवर्स. Question paper will be divided into 2 sections, section A and section B. Section A is the compulsory questions. You have to attempt all questions from this section. This section will contain 3 questions, question number 1, question number 2 and question number 3. All these three questions are compulsory questions. Question number 1 will contain 15 MCQs. One question will carry 1 marks. It means weightage of question number 1 is 15 marks. So you have to concentrate on this. Question number 2 and question number 3 will contain 3 parts, first, second and third. It means total 6 parts in question number 2 and 3. One part will be of 5 marks and remaining 5 parts will be of 4 marks each. Now come to the section B. Section B will contain 7 questions, 4 से लेकर के question number 10 तक, and you have to attempt any 4 questions from this section. All questions will have 3 parts, first, second and third. Part first and second will carry 3 marks and the third part will carry 4 marks. You have to attempt any 4. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। एग्जामिनेशन हॉल में देखिए, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं होगा, लेकिन अभी आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने माइंड में सेट करिएगा। टाइम अलॉटेड 2.5 आवर्स. आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली. यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट्स. फर्स्ट 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के, अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए. Attempt all questions from section A and any 4 questions from section B. Mathematics tables are provided. Now come to the section B, which is a compulsory section. We have to attempt all questions from this section. Question number 1, it will contain 15 MCQs. Question number part 1. 2 matrices हमें given है, matrix A and B. And which of following operation is possible? Multiplication, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिए. नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए आर 1 एंड कॉलम्स आर 2, मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/2. नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड subtraction of matrices is possible only when the orders of matrices are same. In this case, order of matrix A and order of matrix B is not same. So A plus B and A minus B, P plus A, B minus A is not possible. Now come to the third part, AB. अब देखिए AB कब possible होगा? When number of columns in A is equal to number of rows in B.
These are equal. It means AB is possible. Look at BA. Number of columns in B is equal to number of rows in A. This is not equal. Means only AB is possible. मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को आपको कैसे मेंशन करना है अपनी आंसर शीट में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. आपको इसके लिए अपने आंसर शीट का एक पेज सेलेक्ट करना है एंड इस वे में आपको अपना आंसर देना है. पार्ट 1 हमने अटेम्प्ट किया है. सी इज द राइट ऑप्शन एंड द आंसर इज ए बी. दिस इज द राइट वे. इसके नीचे आप सेकेंड, थर्ड इसी वे में एक्सप्रेस करेंगे. सेकेंड पार्ट, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके इक्वल टू में हमें गिवन है x-2 इंटू x-3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम राइट हैंड साइड को भी पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू फैक्टर्स. करिए मल्टीप्लाई. इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6. लुक एट दिस. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर इक्वल, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल. इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है k एंड इन द राइट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -5. इट मीन्स k विल बी इक्वल टू -5. सो A is the right option. Come to your answer sheet and write A and the -5. आप इस तरीके से आंसर को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा. थर्ड पार्ट, इट इज बेस्ड ऑन GST. A retailer purchased an item for ₹1500 from a wholesaler and sales is to a customer. MCQs है, आपको बहुत शॉर्ट में सॉल्व करना है, बट मैं आपके साथ इसका कंप्लीट सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, होलसेलर, इसने सेल किया रिटेलर को और रिटेलर ने सेल किया कस्टमर को. होलसेलर ने रिटेलर को ₹1500 में सेल किया है एंड रिटेलर सेल्स इज टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट. इसने इसको 10% प्रॉफिट में सेल किया है. द सेल्स आर इंट्रा स्टेट विद इन अ स्टेट है. इफ द रेट ऑफ GST इज 10%, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कस्टमर. कस्टमर GST पे करेगा CP के ऊपर, कॉस्ट प्राइस पे. अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर क्या है. कस्टमर को वो आर्टिकल कितने रुपए में सेल किया गया है. CP होगा 1500 प्लस 10% प्रॉफिट. अब GST उसको पे करना है इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर एंड द रेट ऑफ GST इज 10%. मीन्स GST विल बी 10% ऑफ CP. जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए. ₹165 means D is the right option. Fourth part, if the roots of this equation are real and distinct, then the value of k. Standard quadratic equation अगर हम consider करते हैं तो if the discriminant is positive, then the roots are real and distinct. And discriminant is b square minus 4ac. b is -6, a is 1, coefficient of x, and c is k. It should be positive. And now it is a linear inequation. We are dividing by -4 by a negative number. So, sign of inequality will be reversed. जैसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. मीन्स फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट k शुड बी लेस देन 9. D इज द राइट ऑप्शन. ये पेज मैं बार बार ओपन कर रही हूं बिकॉज आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर
एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एनी प्रोग्रेशन इज said to be arithmetic progression if difference of two conjugative terms is constant। अगर डिफरेंस कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो एपी होती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस कॉमन है। आप फर्स्ट वाली एपी में देखिए डिफरेंस ऑफ टू टर्म इज 3, नेक्स्ट 5, तो यही यहाँ पर ही डिफर हो गया, इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, 2√3 में से √3 माइनस करेंगे √3। अब थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देखिए, वो भी √3 है, थर्ड और फोर्थ का देखिए वो भी √3 है, कांस्टेंट है डिफरेंस, इट मीन्स इट इज एपी। अब आप इसमें नेक्स्ट में देखिए 6 - 8 -2, डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट 2 -2 और इनका भी -2 है, तो ये भी एपी है। ओनली 2 and 3, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आप मेंशन कर दीजिए इसको वापस से। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये आंसर भी आपको साथ में मेंशन करना है, ये आपको काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ x and y where x is proportional to y. If x is proportional to y, then x upon y will be 6 upon m is equal to 12 upon 18 is equal to n upon 6, and we have to find the values of m and n. तो आप इन दोनों रिजल्ट को कंसीडर कीजिए। दिस इज हाफ ऑफ 12, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, सो m विल बी 9। अब आप इन दोनों को कंसीडर कर लीजिए, देन 6 3s are 18, देन it will be 4, मीन्स C is the right option। आप इसको मेंशन कर दीजिए अपनी शीट पर। द नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ABC मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एंड AD upon PS, look at this, AD is this altitude of first triangle and PS is this। सिमिलर तो ABC और PQR थे, बट रेशो हमें गिवन है इनके एल्टीट्यूड्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB रेशो PQ, AB का PQ से रेशो देखना है। तो अब आप देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमें ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करने चाहिए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। क्या ये भी सिमिलर हैं? देखते हैं। हमें गिवन था ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इट मीन्स इनके ऑल द एंगल्स ऑफ ABC इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। तो आप देखिए ये जो एंगल B है ये इक्वल होगा एंगल Q के, फ्रॉम दिस रिजल्ट। नाउ वी आर कंसीडरिंग द ट्राइंगल ABD एंड triangle PQS। In these two triangles, two angles are equal। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और ये 90 डिग्री का एंगल है इस 90 डिग्री के इक्वल, और टू एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये सब आपको ओरल कैलकुलेशन करनी है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इट मीन्स देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। अब आप यहां से साइड्स लिखिए, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BD अपॉन QS। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं AD अपॉन PS। अब इसमें देखिए AD अपॉन PS हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3/8, एंड वी हैव टू फाइंड AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ भी 3/8 के इक्वल होगा, मीन्स आंसर इज 3:8। C इज द राइट ऑप्शन। अब आप इसको अपनी आंसर शीट में मेंशन कर दीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अ राइट एंगल ट्राइंगल शेप्ड पीस ऑफ हार्डबोर्ड इज rotated completely about its hypotenuse as shown in the diagram। the solid so formed is equal to a single cone or double cone। आप देखिए किसी भी ट्राइंगल को अगर हम रोटेट करते हैं इसका ये वाला कॉर्नर पकड़ के हम इसको पूरा रोटेट करें तो ये वाला कॉर्नर इसका यहाँ पर आ जाएगा,
और इसको आप बार बार रोटेट करेंगे तो हमेशा हमें कोन ही मिलता है। पर इस क्वेश्चन में हमें स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो देखिए, अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करें तो क्या मिलेगा। सपोज मैंने इसको रोटेट करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसके परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जैसे इसमें किया था। तो ये वाला साइड कॉर्नर उठ के यहाँ पर आ जाएगा और इसको आप गोल 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 इसको यहाँ वापस गोल 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 इसको रोटेट करेंगे आप, तो आपको ये कोन मिलेगा। और इस कोन में आप देखिए, जिस साइड के अबाउट हमने रोटेट किया था वो साइड उस कोन की वर्टिकल हाइट बन जाएगी। और नेक्स्ट वाली जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाती है वो उसकी रेडियस बन जाएगी। अब आप देखिए, अगर हम इसको इसके बेस के अबाउट रोटेट करते, बेस के अबाउट रोटेट करना है BC के अबाउट, तो ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा और तब आप यहां से इस पे इसको गोल गोल रोटेट करेंगे, तब भी आपको सिंगल कोन बन रहा है। इस बार आपने जिसके अबाउट रोटेट किया है वो उसकी वर्टिकल हाइट बन जाएगी और नेक्स्ट वाली साइड जो राइट एंगल बनाती है वो रेडियस ऑफ द बेस। नाउ बट इन आवर क्वेश्चन रोटेशन इज अबाउट हाइपोटेनियस। अब देखिए, अगर हम हाइपोटेनियस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा। हाइपोटेनियस के अबाउट मीन्स ये जो AC साइड है इसको हमें फिक्स रखना है। तो इस वाले कॉर्नर को पकड़ के हम इधर ले जाएंगे और फिर हम यहां से यहां गोल 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 ऐसे रोटेट करेंगे। देखिए, इसको हम इस वाले कॉर्नर को इधर ले गए और उसके बाद गोल गोल रोटेट करेंगे। आप देखिए, इस वे में हम रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वाली शेप मिलेगी जो मैंने बनाई है। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस टाइप की शेप है, काइट की शेप अब हमें मिलेगी। आप देखिए, ये एक काइट की शेप है, काइट है ये। अब काइट में आप देखिए क्या मिल रहा है हमें, 2 कोन्स मिल रहे हैं, एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे। यहां पर हमने इसके अबाउट रोटेट किया है तो ये एक कोन हमें ऊपर मिल रहा है और एक कोन नीचे मिल रहा है। जो हाइपोटेनियस ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर वाले कोन की वर्टिकल हाइट होगी, नीचे वाले कोन की वर्टिकल हाइट होगी। ये रेडियस दोनों कोन का हमें सेम मिलेगा। मीन्स अगर हाइपोटेनियस के अबाउट हमने रोटेट किया है देन वी विल गेट अ डबल कोन। हाइपोटेनियस को छोड़ करके अगर परपेंडिकुलर या फिर बेस के अबाउट हमने रोटेट किया होता देन वी विल गेट अ सिंगल कोन। द आंसर इज ओनली 2। B इज द राइट ऑप्शन। इसको अब आप अपनी शीट में मेंशन कर दीजिए। इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए और उसको राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में कट कर लीजिए, फिर आप उसको तीनों साइड के अबाउट रोटेट करके देखिए जरा क्या मिलता है आपको। नेक्स्ट 9th पार्ट, इसमें हमें 3 इवेंट्स गिवन हैं। विच ऑफ द अबव इवेंट्स हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब देखिए, इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मतलब उस इवेंट को होने के चांसेस 100% है। मीन्स उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इवेंट A, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो। दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर रेनी सीजन भी होगा, हमें दिखाई नहीं देगा सन, लेकिन वो तो फिर भी ईस्ट से राइज होगा और वेस्ट में जाके सनसेट होगा। So it is probability of this event is 1. Now come to the B. It will rain on Monday. अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि मंडे को रेन हो। जब IMD भी फोरकास्ट देती है तो वो पॉसिबिलिटीज़ बताती है। 100% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, 100% रेन तो नहीं कही जा सकती। एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसमें वेरिएशन हो सकता है। इवेंट C को देखिए। फेब्रुवरी मंथ हैज़ 29 डेज इन अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है इट मीन्स फेब्रुवरी विल कंटेन 29 डेज। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मीन्स इवेंट A एंड इवेंट C आर यूनिवर्सल ट्रुथ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 2 इवेंट्स विल बी 1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये मेंशन किया गया है। ऑप्शन D, बोथ इवेंट्स A एंड C। इसको आप मेंशन कर दीजिए।
Now 10th, the three vertices of a scalene triangle are always equidistant from a fixed point. Scalene triangle हमें बनाना है, मीन्स जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में डिफर हों. अब देखिए ट्राइंगल आप स्कैलन बनाइए, आइसोसेलेस बनाइए, इक्विलेटरल बनाइए, इसका आंसर सेम होगा. अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसके तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो. तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ट्राइंगल, वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट उस सर्कल का सेंटर जो तीनों वर्टिसेस को टच करके जाएगा, बिकॉज ये तीनों उस टाइम पर रेडियस होंगी. एंड ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. मीन्स द पॉइंट विल बी सर्कम सेंटर. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 11th, in a circle with radius r, the shortest distance between two parallel tangents. सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसकी ये एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी है. अब इसके पैरेलल टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कवर करनी है. देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल होगा. और अगर हम ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी किया है कि टेंजेंट पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसके सेंटर से पास होगा. मीन्स ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास होगा. और अगर ये सेंटर से पास होगा देन it is also radius and it is also radius. Then the shortest distance between two parallel tangents will be 2r, equal to the double of radius, equal to the diameter. B is the right option. Mention करना मत भूलिएगा in proper manner. 12th part, an observer at point E, which is at certain distance from the lamp post AB, finds the angle of elevation of the top of the lamp post from C, D and E, alpha, beta and gamma. जब उसने E से देखा तो गामा था, D से देखा तो बीटा था और C से देखा तो अल्फा था एंगल ऑफ एलिवेशन. It is given that B, C, D and E are along a straight line. Which of the following condition is satisfied? आप देखिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स में से कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट होगा? ऑर्डर क्या होगा अगर हम इन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें? तो आप देखिए लैंप पोस्ट ए बी है, तो आप जितना दूर जाते जाएंगे इस लैंप पोस्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही रिड्यूस होता जाएगा. मींस अल्फा इज द ग्रेटेस्ट और अल्फा से छोटा होगा बीटा और बीटा से छोटा होगा गामा. अब आप आ जाइए टेंजेंट पर. अगर आप टेंजेंट की टेबल देखेंगे या फिर आप नॉर्मली इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे टेन थीटा में अगर एंगल बढ़ता है 0 से, आप 10 डिग्री का देखें, 30 डिग्री का, 45 का, 90 पर तो ये अनडिफाइंड हो जाता है. 10 0 की वैल्यू 0 होती है. तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं और एंगल बढ़ने पर टेंजेंट की वैल्यू 10 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. 1030 की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है 1045 से. 1045 की वैल्यू लेसर है 1060 की वैल्यू से. तो अगर एंगल बढ़ेगा तो 10 की वैल्यू भी बढ़ेगी. सेम थ्योरी फॉलो होती है साइन के लिए. कॉस में रिवर्स होता है, उसमें एंगल बढ़ता है तो वैल्यू स्मॉल होती है. तो अगर अल्फा बड़ा है बीटा से और बीटा ग्रेटर देन है गामा, इट मीन्स 10 अल्फा बड़ा होगा 10 बीटा से और 10 बीटा बड़ा होगा 10 गामा से. अब देख लीजिए इसमें कौन सा फैक्ट गिवन है. 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा, ये तो करेक्ट है. 10 बीटा स्मॉल नहीं है, 10 गामा स्मॉल नहीं है, 10 गामा ग्रेटर नहीं है, 10 गामा इज द स्मॉलेस्ट एंड 10 अल्फा स्मॉलर नहीं है. मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. आपको इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसी फैक्ट से लिख सकते हैं. 13th, इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड. Shares of company A paying 12% rupees 100 share at 80 rupees means 100 rupees शेयर की वैल्यू एट प्रेजेंट है 80 रुपीज़ और B में 100 रुपीज़ शेयर की वैल्यू एट प्रेजेंट 100 ही है और C कंपनी के शेयर्स जो 100 रुपीज़ के थे वो एट प्रेजेंट रुपीज़ 120 के हैं.
शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स एट प्रॉफिट। तो देखिए कौन सी कंपनी के शेयर आपको प्रॉफिट में लेने पड़ेंगे। कंपनी एक तो 20 रुपीज़ लेस में है, कंपनी बी वो ना तो लॉस में है ना ही प्रॉफिट में। कंपनी सी के शेयर्स 20 रुपीज़ प्रॉफिट में, मीन्स 20 रुपीज़ प्रीमियम पर मिल रहे हैं, मीन्स आंसर इज कंपनी सी। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। 0 0 से कौन सी लाइन पास होगी? अगर 0 0 से जो लाइन पास होगी उस लाइन की इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। 0 0 आप पुट करके देख लीजिए। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x के प्लेस पर भी 0, y के प्लेस पर भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल रही है 5, बट राइट हैंड साइड इज 0। इट मीन्स दिस विल नॉट पास थ्रू ओरिजन। सेकेंड इक्वेशन में आप x के प्लेस पर 0 रखिए, y के प्लेस पर 0 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 0 मिल रही है और राइट हैंड साइड भी 0 मिल रही है। इट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। आप थर्ड में भी पुट करके देखिए, 0 इज इक्वल टू 5 नॉट सेटिस्फाइड, 0 इज इक्वल टू -6 नॉट सेटिस्फाइड। लाइन नंबर बी ऑप्शन 2x - 3y इज इक्वल टू 0 विल पास थ्रू द ओरिजन। नेक्स्ट लास्ट MCQ, for the given 25 variables x1 x2 up to x25, assertion और reason हमें given है। assertion हमें given है to find median of the given data, the variate needs to be arranged in ascending or descending order। अगर हमें median find out करनी है तो हमें डाटा को अरेंज करना होगा या तो ascending order में और या फिर descending order में। सही बात है। अगर आप मीडियन फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एजर्शन तो हमारा राइट है। रीजन क्या दे रहे हैं हम इस एजर्शन के पीछे, क्यों हमने अपने डाटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिना हमने अरेंज किए भी क्यों फाइंड आउट नहीं किया। उसका रीजन देखिए क्या मेंशन किया गया है, द मीडियन इज एट सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डाटा। तो नेचुरली मीडियन ये भी ट्रू है भाई, सेंट्रल मोस्ट टर्म है, इसीलिए तो आपको अरेंज करना पड़ा, बिकॉज जब आप एक अरेंजमेंट लेंगे प्रॉपर तभी तो आप सेंट्रल मोस्ट देख पाएंगे। मीन्स एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। सी इज द राइट ऑप्शन। We have completed our 15 MCQs. Now we are coming to the question 2. It is also a compulsory question because we are solving section A, which is compulsory. It is from mensuration. Shown below is a horizontal water tank composed by a cylinder and two hemisphere. आप देखिए ये एक तो इसमें सिलेंडर बनाया गया है, और इसके साथ ही टू हेमिस्फेयर्स को ऐड किया गया है दोनों कॉर्नर्स पे इसको शेप देने के लिए। द टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर की हाइट तक इसमें फिल किया गया है वाटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। वाटर के साथ जो कॉन्टेक्ट में है सरफेस एरिया वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके 2 मेथड्स हैं, सिंगल एक ही मेथड है, जस्ट आपको सोचने में आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आप इसको पूरी फिगर को ध्यान से देखें तो जस्ट ये वाटर टैंक हाफ फिल्ड है, तो आप पूरे टैंक का सरफेस एरिया निकाल लीजिए और उसके बाद उसको हाफ कर दीजिए। फर्स्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। सिलेंडर और हेमिस्फेयर को मिलाकर फिर ये बनाया गया है, तो आप सिलेंडर का भी हाफ सरफेस एरिया ले लीजिए और इस हेमिस्फेयर का भी आप दोनों तरफ से हाफ हाफ ले लीजिए। अब देखिए अगर हम सेकंड वाले मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ये टैंक जो है ये टच नहीं कर रहा है सिलेंडर में, ये कोई बॉटम नहीं है सिलेंडर की यहाँ पर, तो हमें कर्व्ड सरफेस लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, मींस आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी।
तो आपको अपने सॉल्यूशन को सही करने के साथ साथ प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्रेस भी करना है। विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए कॉर्नर्स वाला जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन किया गया है इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, तो आप देखिए इस पार्ट का जो हमें निकालना है, अगर इसको मैं यहां से यहां पर फिट कर दूं, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। मींस इस पार्ट और इस पार्ट को मिला करके हम लिख सकते हैं प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसको हमें हाफ नहीं करना है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पूरे दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फेयर का होता है तो हेमिस्फेयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। pi is 22/7. Radius of the cylinder is this is equal to 7, and height of the cylinder है सिलेंडर की, आप देखिए ये यहां से लेके यहां तक। अब हमें टोटल 34 गिवन है और रेडियस सिलेंडर की 7 है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी 7 है, मींस ये भी 7 होगा और इधर से ये भी 7 होगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 34 minus 7 minus 7, 20 meter. And the radius of the hemisphere is 7. (748 square meter). Second part, it is from banking. In a recurring deposit account for 2 years, time limit हमें given है, वैल्यू ऑफ n 2 years, और बैंकिंग के क्वेश्चंस हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम टाइम को पुट करते हैं मंथ में, मीन्स टाइम इज 24 months. The total amount deposited by a person is 9,600. टोटल 24 months में जो उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है NP, वो है ₹9,600. If the interest earned by him is 1/12 of his total deposit, interest is 1/12 of total deposit, means 1/12 of 9600. Find the interest he earns. In first part, we have to calculate interest I, that is 1/12 into 9600, means total interest is ₹800. In second part, we have to calculate his monthly deposit. Monthly deposit means value of P. तो देखिए NP हमें given है 9600 and value of N is 24. Then P is equal to 9600 divided by N, means 9600 divided by 24, ₹400. In third part, we have to calculate rate of interest. इसके लिए हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू Pn n plus 1 divided by 2 into 12 multiply by r upon 100. गिवन वैल्यूज पुट कर रहे हैं. इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है 800. P पूरा हमें गिवन है 9600. n हमें गिवन है 24. then n plus 1 will be 25 and r we have to calculate.
then R is 8% per annum, 8%. Third part of question number 2, it is from trigonometry. Find these two values and using the above result prove the following trigonometric identity. First we are considering part A. We have to find the value of sin theta plus cosec theta whole square. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे यू हैव टू मेंशन दिस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी 1 बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2. नाउ पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं हम. दैट इज कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर. इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. अगेन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. सो पार्ट बी की वैल्यू हमें मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2. नाउ हमें जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज जस्ट द एडिशन ऑफ a एंड b. अब इस पार्ट का वैल्यू और इसका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम a एंड b. पार्ट a से इसकी वैल्यू हमें मिली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और इसकी वैल्यू पार्ट b से पुट कर रहे हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2. अब देखिए राइट साइड में हमें प्रूव करना है. जो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड है वो है टेन और कॉट की. चलिए हम टेन और कॉट में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 2 प्लस 2 4 एंड दिस 1 इज 5. कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1. सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बिकॉज मेंशन कर दीजिए. Now this is 5, 6, 7. 7 plus tan square theta plus cot square theta means equal to right hand side. So it is proved. Question number 3. It is also a compulsory question. If ABC are in continued proportion then prove that. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं. मैं दोनों आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पहले फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं. इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इट मीन्स B square is equal to AC. This is result 1. Now consider the left hand side of the question. 3A square plus 5AB plus 7B square divided by 3B square plus 5BC plus 7C square. On looking right hand side, it is clear that from numerator we have to A and from denominator we have to C. So we are taking common A from numerator. Then we will get 3A plus 5B plus 7B square upon A. From denominator we are taking common C. Then we will get 3B square upon C plus 5B plus 7C. Now we are using this result. B स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं AC. डिनोमिनेटर में भी हम B स्क्वायर के प्लेस पर AC पुट कर रहे हैं. This is equal to A upon C means proved.
सेकेंड मेथड इज के मेथड विच इज वेरी पॉपुलर. चलिए उससे भी सॉल्व कर लेते हैं. Since ABC are in continued proportion, it means A upon B is equal to B upon C. Let it be equal to K. Then A is equal to BK, B is equal to CK. अब ये देखिए B is equal to CK अगर हम यहाँ पर वापस पुट कर दें B के प्लेस पर CK, then value of K will be CK square. Now consider the left hand side of the question. Substitute B is equal to CK and A is equal to CK square. सभी टर्म्स को हम C और K में कन्वर्ट कर रहे हैं. A के प्लेस पर हमने CK स्क्वायर पुट किया, देन A स्क्वायर विल बी C स्क्वायर K रेज टू द पावर 4. A के प्लेस पर हमने CK पुट किया और CK स्क्वायर, और B के प्लेस पर हमने पुट किया CK. B स्क्वायर विल बी C स्क्वायर K स्क्वायर. कॉमन ले लीजिए. न्यूमरेटर में से कॉमन है C स्क्वायर K स्क्वायर और डिनोमिनेटर में से कॉमन है C स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर. A का वैल्यू हमारे पास था CK स्क्वायर. इट मीन्स K स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन C. सो इट इज प्रूव्ड. आप दोनों मेथड में से जिस मेथड से चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. इट इज फ्रॉम सर्कल. इन द गिवन डायग्राम O is the center of circle circumscribing the triangle ABC. CD is perpendicular to chord AB. Angle OAC, this is 32 degree. Find each of the unknown angles XYZ. हमें XYZ फाइंड आउट करना है. अब देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम केवल 2 पॉइंट्स हैं जिन पर कंसंट्रेट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है, सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है. तो अब देखिए ये एंगल हमें 32 डिग्री गिवन है. अगर हम इसमें कंसीडर कर लें ट्राइंगल OAC को, OA equal to OC, radii of same circle, O is the center. It means triangle OAC is an isosceles triangle. और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो अगर ये 32 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी 32 डिग्री होगा. नाउ sum of angles of a triangle is 180 degree. It means 32 plus 32 plus x is equal to 180 degree. और इसकी हेल्प से हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए बिकॉज वी आर सॉल्विंग अ थियोरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है. तो पहले हम इसको एक्सप्रेस करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देन वी विल कम टू द y एंड z. In triangle OAC, OA is equal to OC, radii of same circle. जो भी आप मेंशन करेंगे रीजन आपको मेंशन करना मस्ट है. Therefore, angle OAC will be equal to angle OCA is equal to 32 degree. Now, angle OAC plus angle OCA plus x is equal to 180 degree. Why? Because sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Now OAC 32, OCA 32 plus x is equal to 180 degree means x is equal to
116 डिग्री। तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ कम टू द y एंड z। फॉर दिस वी आर कंसीडरिंग द आर्क AC। अब देखिए, अगर आर्क AC को हम कंसीडर करें, देन एंगल मेड एट द सेंटर इज x and angle made at the circumference is y, and angle made at the center is twice the angle made at subtended at the remaining circumference. So y, x will be the double of y. In other words, y will be the half of x. If x is 116, then y will be 116 by 2, 58 डिग्री। चलिए अब हम y का सोल्यूशन मेंशन करते हैं। y इज इक्वल टू x बाई 2। जस्ट आप यहाँ पे इसका रीजन मेंशन कर दीजिए। यहां पर मैं आपको कहूंगी आर्क जरूर मेंशन करिएगा। हम आर्क कंसीडर कर रहे हैं AC। Now y is equal to 116 by 2 means 58 degree. x और y हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड z। तो देखिए, अगर इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करें BDC, sum of angles will be 180 degree and this is given 90 degree. So 90 plus y plus z will be equal to 180 degree. 90 and y is known, so by this we will be able to find z. Y is 58, so z will be equal to 32 degree. Third part of question number 3. Last question of compulsory section. Study the graph and answer each of the following. ग्राफ हमें गिवन है। नेम द कर्व प्लॉटेड। तो ग्राफ को देख करके आप कह सकते हैं इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व उज्जाइव। मीन्स आंसर फॉर पार्ट ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लुक एट द कर्व। y एक्सिस पर हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लुक एट दिस। अब देखिए, इसमें लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट पॉइंट ये मेंशन है 140। तो इसको y एक्सिस पर देखिए, इट इज एंडिंग एट 40, मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। In C, the median marks. If total number of students are 40, it means we have to find 20 स्टूडेंट्स ने कहाँ तक मार्क्स गेन किए हैं। तो देखिए 20 वाला पॉइंट ये है और आपको साथ में इसमें मेंशन किया गया है इस लाइन से 6 और डिवीजन पर ये मीट हो रहा है। 50, 51, 52, 53, 56 मीन्स 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स 56 आए हैं, मीन्स मीडियन मार्क्स इज 56। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80, मार्क्स हमें गिवन है एक्स एक्सिस पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं विच इज स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 60। तो देखिए 50 तक मार्क्स फाइंड आउट किए हैं, ये वाला पॉइंट हमें मेंशन किया गया 12 स्टूडेंट्स ने। 12 स्टूडेंट्स 40 में से ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से नीचे हैं, लेस देन 50 हैं। और 80 वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है 37 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 तक हैं, 0 से 40 से लेकर के 80 तक। तो 50 और 60 तक किसने किए हैं? 37 में से 12 माइनस के कर लीजिए, बिकॉज हमें वो स्टूडेंट्स काउंट करने हैं जिनके मार्क्स 50 से तो ज़्यादा हैं बट
80 से कम है, तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से बिलो हैं, तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे। आंसर इज 25। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर सेक्शन ए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सेक्शन बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।